Hi dear students, we are going to start the lecture number 2, Magnetic Facts of Current. The name of the topic is Relation between magnetism and current, electricity, or magnetism and electricity. So dear students, here is the topic. Students, earlier it was thought, पहले ऐसा सोचा गया था कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है. बट लेटर साइंटिस्ट फाउंड एंड दे हैव को-रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. तो कुछ देर बाद वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशन निकाला और उससे इतने मिराकुलस कॉन्सेप्ट्स मिले, इतने मिराकुलस अचीवमेंट्स हुई, अनबिलीवेबल. लाइफस्टाइल इज चेंज्ड. जैसे इंटरनेट ने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, तो relations between magnetism and electricity is one of the pillars of science and technology. So 1540 to 1603 विलियम गिलबर्ट इस दुनिया में रहे एंड उन्होंने एक बुक पब्लिश की. उस बुक का नाम है डे मैग्नेट, DEMEGNET, डे मैग्नेट. ये जो किताब है डे मैग्नेट, इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर काफ़ी रिलेशंस डेवलप किया. और ये बुक जो है, इट इज़ ए माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ व्हाट यू कॉल मैग्नेटिज्म. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस बुक में उन्होंने दिए. विलियम गिलबर्ट एंड मैनी साइंटिस्ट ऑफ दैट एरा हैज फाउंड नोटिसेबल and very useful informations regarding the relationship between the magnetism and electricity. Many scientists discovered remarkable, concepts at that time in the era of William Gilbert, right? So, what were those? I'm telling you, just reminding you a lot of things you already are aware. The first observation is electric charges are of two types, positive or negative. Similarly, magnetic poles are of two types, north and south. Means north is just like positive, south is just like negative, but they are not positive negative, right? Like charges repel each other. Like poles of magnet repel each other. Like charges repel each other. Like poles of magnet to repel each other. Opposite charges attract each other. जो opposite charges हैं, positive and negative, वो क्या करेंगे? They will attract each other. Opposite poles like north north, south south, वो तो north and south they will attract, south or north they will attract. तो opposite poles like opposite charges they will attract each other. Clear? Charged objects like any positively charged spherical body, they set up what? Electric field. So electric field is surrounded by charged objects, correct? It is surrounded by charged objects. So magnetic fields are set up
अराउंड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। तो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सेट अप अराउंड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। Rubbing creates charged body and rubbing creates magnetized body. Is it clear? So dear students, ये observations led scientists to conclude that electricity and magnetism are closely related. ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है, राइट? डिस्पाइट so closely related, this electricity and magnetism, इतने closely related होने के बावजूद भी these are really different phenomena. Means इनमें relations है, closely related है, properties कितनी मिलती जुलती हैं, but they are different phenomena, एक electricity, एक magnetism. Correct? Now, what is the most important difference between electricity and magnetism? वो मैं आपको एक यूनिक सर्कल में बताता हूं, आपको इस साइड पे, राइट? द यूनिक पॉइंट, दिस इज द यूनिक पॉइंट. सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट बट मैग्नेट पोल डोंट एग्जिस्ट. तो सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज तो एग्जिस्ट करता है बट मैग्नेट पोल डू नॉट एग्जिस्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमने रिलेशन स्टडी किया बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव. मैग्नेटिक पोल्स आर ऑफ टू टाइप्स, one is north pole and other is south pole. Like charges repel each other, like poles of a magnet repel each other. तो like charge repel करते हैं, like poles भी repel करते हैं. Opposite charges attract each other, but opposite poles attract each other. So ये similar हुआ. Charge objects setup जो होता है, charge objects set up electric field और magnetic fields are set up around magnetic objects. तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के अराउंड मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है अराउंड दी मैग्नेटिक सब्सटेंस. रबिंग, जब हम रबिंग करेंगे तो चार्ज बॉडी आती है और जब हम एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को रब करेंगे तो वो भी मैग्नेट बन जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैंने दिया. अब मैं अगला कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ. द कॉन्सेप्ट इज, hi students, now I am going to discuss with you Oersted's discovery. Actually today I have seen one video of someone is teaching, from abroad, so I am getting kind of inspiration from that very teacher. Anyway, nahi, desi theek hai. Students, first experimental evidence regarding relationship between electricity and magnetism was observed by Danish physicist Hans Christian Oersted. जो हंस क्रिश्चियन ओएस्टेड साहब जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, ये 1777 में इस ग्रह पे आए और 1851 में इस ग्रह पर अपनी यात्रा पूरी करके चले गए. लेकिन 1819 में इन्होंने एक डिस्कवरी की. He made this discovery while delivering a lecture. क्या लेक्चर था, उसका टॉपिक क्या था, आप हैरान हो जाओगे. स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें किताब में लिखी होती हैं पढ़ते नहीं हैं. आप डेफिनेशन पढ़ते हो, डेरिवेशन करते हो, निकल जाते हो. लेकिन जब मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इससे सब्जेक्ट का इन डेप्थ समझ आता है. ये नोट्स नहीं बनाने, ये सिर्फ समझना है.
यहां नोट्स बनाने हैं, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, बोलो बनाओ नोट्स। अब उनका लेक्चर क्या था, आपको हेडलाइन लेक्चर का बताता हूं क्या था। Here is the headline of the lecture delivered by Hans Christian Ørsted in 1819. Non-relationship between electricity and magnetism. हिंदी में क्या मतलब है इसका? कोई रिलेशन नहीं है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड कि विपिन सर आप क्या बोल रहे हो, मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है। वो 1819 में हंस क्रिश्चियन ओयस्टेड, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए हंस क्रिश्चियन ओयस्टेड हूं, ऐसे जस्ट आई एम ट्राइंग टू इमिटेट। सो डियर साइंटिस्ट, आई एम गोइंग टू deliver a lecture, a non-relationship between electricity and magnetism. The headline indicates that I am going to tell there is no relation between electricity and magnetism. मैं इस पे लेक्चर देने जा रहा हूं और इस लेक्चर में हो क्या रहा है। सो हंस क्रिश्चियन ओयस्टेड साहब डेनमार्क में, क्योंकि वो डैनिश फिजिस्ट थे, कोपेनहेगन में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में वो एक लेक्चर देने पहुंचे साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन। तो वहाँ यंग साइंटिस्ट को बोलने लगे कि देखो मेरे पास एक वायर है एंड उस वायर में करंट पास कर रहा है। सो डियर साइंटिस्ट, there is a wire through which current is flowing. You know magnetic compass, when we place it near the current carrying conductor, if the current carrying conductor has got a magnetic field, the compass would show no deflection. So he placed compass like this, perpendicular to the wire, and it showed no deflection. Now, what happened accidentally? हो गया no relationship, but what happened accidentally? जैसे हम पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को फिर से रिपीट करते हैं, तो बोला एक बार फिर देखो, ये कंपास, एकदम से कंपास ऐसे हिल गई। अब वो पहले तो उन्होंने परपेंडिकुलर रखा था, अब उन्होंने कंपास को रख दिया पैरेलल। जैसे ही पैरेलल रखा, कंपास घूम गई। कितना इंटरेस्टिंग होता है। देखो कभी कभी हम लोग ऑनलाइन में सर्च करते होते हैं, हमारा परसेप्शंस होता है कि यार ऑनलाइन में क्या है, यूट्यूब। जब यूट्यूब में सर्च करते करते मेरा लेक्चर मिल गया किसी को, एक्सीडेंटल, और उसको मेरा मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग अच्छा लग गया, तो ओके, मतलब मैं एक नेचुरल वे से पढ़ाता हूँ। कई बार मैं देखता हूँ ना कहीं स्टाइलिश होता है, स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टेल दिस, हम भी कर लेंगे, चलो इसमें क्या है, बट कंटेंट तो समझ आए। तो ये जो कंपास है बॉस, ये हिल गई। उन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया तो कंपास की भी डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन बदल गई। उन्होंने करंट जीरो किया तो कंपास अर्थ नॉर्थ साउथ में ओरिएंट कर गई, मींस
ये नॉन रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के हम लेक्चर दे रहे थे, लेकिन भाई साहब ये नॉन काटना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड magnetism. So Oersted experiment concluded that around every current carrying conductor there exists a magnetic field. Around every current carrying conductor there exists a magnetic field. Around every current carrying conductor there exists electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना बहुत ज़रूरी है. डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको लेक्चर दिया, दिस इज प्योर थ्योरेटिकल. इसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिंपली आपने इन लेक्चर्स को सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सुनना है. कोई पॉइंट अच्छा लगता है, जैसे मैं ये 1777, 1851 लिखता हूँ, 1819 यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, डेनिश फिजिस्ट हंस क्रिश्चियन ओएस्टेड. तो ये आपको नॉलेज के लिए देता हूँ. कई बार कुछ बच्चे खाली प्लस 10th में नहीं पढ़ते, वो आगे जाके यूपीएससी एग्जाम्स देते हैं, एनडीए देते हैं, नीट जी देते हैं. तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, विच इज़ बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री ऑफ द concept. Hope you understand my logic. So here you can make a screenshot, otherwise it's okay. Ampere's swimming rule. Dear students, the idea of the deflection direction was put forward by a French mathematician, a very famous name. पूरे करंट के चैप्टर में आपने उनका बहुत नाम लिया है एज ए यूनिट. कैन यू गेस? ही इज आंद्रे मैरी एम्पियर. वो इस प्लेनेट पे 1775 में आए और 1836 में इस ग्रह की यात्रा पूरी करके चले गए. सो ही कंप्लीटेड ही जर्नी ऑन द प्लेनेट अर्थ 1775 टू 1836. अरे यार, इन्हीं के नाम से तो एम्पियर यूनिट ऑफ करंट है. तो उनका नाम क्या है? आंद्रे मैरी एम्पियर. कई बार क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. इट इज आफ्टर द फुल नेम ऑफ ए, आंद्रे मैरी एम्पियर, बी आंद्रे जूली एम्पियर, सी आंद्रे जॉन एम्पियर, डी आंद्रे पीटर एम्पियर. अब आपको तो एम्पियर पता है, आंद्रे मैरी एम्पियर. गॉट इट? दिस इज विपिन सर वे ऑफ टीचिंग. सो जो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, वो एक स्विमिंग रूल बनाया गया. पूछेंगे सर ये आंद्रे मैरी एम्पियर कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के. आप ये भी पूछेंगे सर हमारे इंडियन साइंटिस्ट, बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन साइंटिस्ट का. बहुत जल्दी मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं भारतीय विज्ञान के ऊपर, जो हमारे वेदों में है, जिसमें शून्य क्या है,
अनंत इन्फिनिटी क्या है, सब बताऊंगा। हैरान हो जाओगे कि कितनी रिसर्च हमारे इंडिया में पहले से हो चुकी थी, लेकिन उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग इसलिए नहीं हो पाई कि हम लोग एकजुट नहीं रहते, तो दूसरे फ़ायदा उठा के हर जगह से हमें पीछे की ओर पुश करने की कोशिश करते हैं, पर होने वाले नहीं है। आंद्रे मैरी एम्पियर ने एक स्विमिंग रूल दिया, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। Here is the rule. What's the rule? According to Ampere, if we imagine a man swimming with his hand in the direction of current, then the north pole of the magnetic needle will be deflected towards his left hand. North pole of the magnetic needle will be deflected towards his left hand. See students, imagine a man is swimming with his hand in the direction of current. तो उसका हाथ जो है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है, ठीक है, इन द कंडक्टिंग वायर facing towards the needle. Then the north pole of the magnetic needle, north pole of the magnetic needle, ये जो मैं रेड दिखा रहा हूं ये नॉर्थ पोल है, north pole of the magnetic needle will be deflected towards his left hand. तो ये north pole, it will deflect towards his left hand. So दिस इज नॉर्थ पोल। पहले तो नीडल साउथ नॉर्थ पैरेलल रखी गई इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जैसे ही ऑन हुआ तो इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। दिस इज नोन एज एम्पियर्स स्विमिंग रूल। इसको स्टूडेंट्स स्नो रूल भी कहते हैं। हाउ स्नो रूल? लेट मी टेल यू. What is this snow rule all about? It means that if current is flowing from south to north direction, if current is flowing from south to north direction, then the north pole of the needle will deflect towards west. If the current is flowing south to north, if the current is flowing south to north, then the north pole of the needle will deflect towards west. So this is called snow rule. So dear students, लोगों ने एम्पियर स्विमिंग रूल किया, हम लोगों ने हंस क्रिश्चियन ओएस्टेड के बारे में स्टडी किया। तो अभी तक ये जो 2 लेक्चर आपको मैंने दिए प्योर थ्योरेटिकल दिए, और एक आपको एक्टिविटी देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप प्लॉट करना जरूर, मैग्नेट रख के कॉम्पस के साथ। तो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल आपका चैनल है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, और मेरे जो लेक्चर्स हैं वो टोटली सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड होते हैं। ये बिल्कुल वैसे अपलोड होते हैं जैसे एक कोचिंग सेंटर में टीचर पढ़ाता है या एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है। तो अगर आपको ये मेरे लेक्चर यूज़फुल लगते हैं तो उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें जो
सेल्फ स्टडी में विश्वास रखते हैं और वो कहीं दूर लाखों रुपया वेस्ट नहीं करना चाहते, खर्च नहीं करना चाहते, वो घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो ये उनके लिए वर्दी है। तब जब आपके लिए ये वर्दी मीन्स WORTHY। इंडिया स्टूडेंट्स, हर लेक्चर के पीछे एक मेहनत होती है। जितनी मोटिवेशन स्टूडेंट को होती है टीचर से, और उतनी ही मोटिवेशन टीचर को स्टूडेंट से होती है। तो मोटिवेशन इज़ म्यूचुअल। मेरा एक सपना है कि मेरी टीचिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो सबको वो शेयर की जाए, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे सीखें, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो गांव में हैं, जो बाहर नहीं आना चाहते, अपने खेतों में भी काम करना चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, वो एक रियल अब्दुल कलाम मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि यू विल ऑल सपोर्ट मी, एंड इसको आप शेयर कीजिए, मैक्सिमम ग्रुप्स में कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए, डिफरेंट लोकेशंस पे आप इसको शेयर कीजिए। हर बच्चा, जितने भी इस चैनल को देखते हैं, कम से कम 5 स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो। और मेरे लेक्चर कैसे लगते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, जैसे भी लगते हैं, ठीक। थैंक यू। सब्सक्राइब and like and comment, plus work very hard, respect your teachers, you will gain lot of knowledge in tons. Bye bye.